introduction. Very good morning to all of you. And today you're probably beginning your day today with a topic like sexual harassment of women at workplaces. और मैं मानती हूँ इसलिए कि शायद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है because the very first session in the morning addressing a topic like this throws up a huge challenge to the speaker here. दोस्तों इस सेशन में मैं अपनी जो भाषा रहेगी वो एक मिक्स्ड आई विल कीप इट अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, पर भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे जो विचार हैं इस विषय पर वो आप तक पहुंचाने का मैं पूरा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करूंगी. Forgive me if there is a point where, and in fact you can feel free to stop me यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ you want to share something, you want to share your opinions or whatever, you can just feel free to pitch in and do that. Before I begin my talk, let me thank Dr. Preeti Dharmik for having me over. It's always an honor to be at the UGC HRDC, so thank you very much once again. दोस्तों आपका ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, दिस इज अ कोर्स दैट इज एड्रेसिंग द इशू ऑफ जेंडर. तो जेंडर स्टडीज पे जब हम गौर करते हैं, आज के ज़माने में जब हम जेंडर की बात करते हैं, तब the time when gender will encompass issues of women only. Okay? आज हम ऐसे ज़माने में हैं कि जहाँ पे जब हम जेंडर जस्टिस की या जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं, तब महिलाओं के बारे में हमने विचार करना, महिलाओं के इश्यूज़ को आर्टिकुलेट करना, उस पे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करना, ये डेफिनेटली इस डिस्कशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. लेकिन विमेन आर नॉट द only center stage of discussion when we talk about gender studies in today's age. तो आज जब हम जेंडर के बारे में सोचते हैं या जेंडर जस्टिस के बारे में सोचते हैं, तब आई थिंक दिस इज अ टॉपिक दैट डिमांड्स दैट we look at issues of women, no doubt, because that is a large part of the whole debate. But today is an age where under this discourse, we also need to think about issues of men. And going further, we also need to address issues of the third gender as well. तो मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में जब हम जेंडर जस्टिस के बारे में विचार करते हैं, it's not a narrow streamlining of the issue. I think this has become a multi-dimensional issue where we need to really think about issues of men, issues of women, and issues of the third gender as well. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपके इस शॉर्ट टर्म कोर्स के दौरान डॉक्टर धार्मिक वुड बी, एज शी ऑलवेज डज, arranging lectures that address all these dimensions. Okay, so I'm sure I took a look at your timetable, madam, and I did see that you included lectures by Mr. Anand Chandrani and Nikunj Joshi and all, who will be addressing these contemporary issues in the domain of gender justice. अब हालांकि मुझे जो विषय दिया गया है आज, so my topic is sexual harassment of women at workplaces. अब ये विषय होने के कारण my focus in this talk is largely going to be on women, क्योंकि मेरा विषय ही वो है that I'm brought here today to talk on the topic of sexual harassment of women at workplaces, right? So I will definitely be focusing, in a major part of my talk I will be focusing on women. लेकिन इस टॉक के एंड में, as we come to the end of the session, I will very briefly try to throw some light on
द अदर डायमेंशंस जो जेंडर स्टडीज के डोमेन में आ जाते हैं, जिसकी मैंने बात आपसे ऑलरेडी की, राइट? सो व्हाट आई प्रपोज टू डू इज, during the course of this session, though my main topic is sexual harassment of women at workplaces, आज का हमारा ये सेशन मैं ब्रॉडली स्पीकिंग 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहती हूँ. पहले हिस्से में, before I talk about sexual harassment of women at workplace, we will spend some time thinking about, why do we really need to discuss issues of women? आज का वो दौर है, वो ज़माना है जब women empowerment की बात बहुत बहुत रोबस्टली की जाती है. तो हम कुछ समय बिताएंगे दोस्तों to just try and think about why really do we need to talk about women empowerment in the first place. Secondly, after doing that, I will try to link the issue of women empowerment with my main subject of sexual harassment of women at the workplace. And from there, in the third segment of my session, we will try to see कि हमने जो कुछ measures लिए हैं आज, जो कानून बनाए हैं, जो प्रकार के laws हमें govern करते हैं इस क्षेत्र में, whether that is a good way of dealing with this problem. ये कुछ बेसिक सवाल हम अपने आप के लिए उठाएंगे. So that generally is the genesis of my talk this morning with all of you. Okay, so let me begin with, just give me a minute, right? Let me begin with the first part of my talk, and yeah, and that is where I wish to talk about क्यों जेंडर जस्टिस की हम बात करें, क्यों विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करें. सो हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर, आई एम बेसिकली एड्रेसिंग विमेन, एंड रिस्किंग रेपिटेशन आई एम सेइंग दिस दैट विमेन पे मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि मेरा विषय इज ऑल अबाउट विमेन दिस मॉर्निंग, राइट? सो वी ट्राई टू रेज अ फंडामेंटल क्वेश्चन कि भाई विमेन एम्पावरमेंट एंड जस्टिस फॉर विमेन, ये सबके डिस्कशन की जरूरत क्यों महसूस होती है? Now, if you begin with a question, why women empowerment, probably इसका जवाब बड़ा सरल सा हमें दिखाई देता है कि भाई women empowerment की बात इसलिए की जाए because women have been disempowered, right? हमारे समाज में यदि हम देखते हैं पीछे मुड़ के, तो हमें दिखाई देता है कि भाई महिलाओं को वही स्टेटस, वही दर्जा समाज के अंदर नहीं मिला जो पुरुषों को मिला था, राइट? बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को कभी कभी ये माना ही नहीं गया कि भाई महिलाएं भी ये सब कर सकती हैं, राइट? So they were disempowered is why we really need to talk about women empowerment. But let's go a little deeper into it and ask ourselves this question कि भाई disempowered क्यों रही महिलाएं? अब इसके ऑफ कोर्स बहुत अलग अलग रीजंस, अलग अलग अकाउंट्स हमारे सामने पेश किए गए, अलग अलग थियोरीज बहुत से लोगों ने हमको बताएं. बट टुडे द पर्सपेक्टिव दैट आई एम वांटिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज लार्जली द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. फेमिनिज्म, ये जो स्कूल है, ये मानती हैं कि जो सारी असमानता विथ रिस्पेक्ट टू विमेन रही, जो सारा इनजस्टिस महिलाओं के अगेंस्ट किया गया, इसका बेसिक रूट कॉज जो है वो एक ही चीज में हमें दिखाई देता है. एंड व्हाट इज दैट रूट कॉज दैट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट? फेमिनिज्म ये मानता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन या इनजस्टिस अगेंस्ट विमेन ये क्यों हुआ, इसका एक बेसिक रीजन है. The problematic part is the model of division of labor which we adopted within society. And when I say society here, मैं सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं कर रही हूं. I am talking about this phenomenon that happened globally. Okay? तो फेमिनिज्म ये मानता है कि भाई जो
डिवीजन ऑफ लेबर का मॉडल सोसाइटी के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था, that model was the most problematic starting point of this entire story of discrimination and inequality. Right now, what is this model of division of labor that they talk about? अब डिवीजन ऑफ लेबर अपने आप में तो प्रॉब्लमैटिक नहीं था. सो व्हेन यू टॉक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यू आर बेसिकली सेइंग कि जो कुछ काम है वो बांट दिया जाए ताकि किसी एक पे there isn't much load, and then therefore there's greater efficiency also in the work that we perform. तो अपने आप में डिवीजन ऑफ लेबर ये प्रॉब्लमैटिक नहीं था, पर इसका जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया, जो मॉडल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर था, व्हाट वाज दैट मॉडल रियली? इस मॉडल के अंतर्गत हमने जो सारा डिवीजन ऑफ लेबर किया वो एक ही आधार पर किया गया, एंड दैट आधार, दैट बेसिस was the basis of sex. Okay, so what did we really do? Within societies हमारे जो रोल्स थे, हमें जो काम करने हैं, ये रोल एलोकेशन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के आधार पर हुआ. Now how did this really happen? अब एक थियोरी पुट अप की जाती है which is called as the natural differences theory. Right? Now what is this natural differences theory? Natural differences theory tells you that by nature women have been created different from men. Okay, so women's bodies are different, the way they are created by nature, right? They are different from the way men have been created. So biologically there is a difference between men and women, and because of this biological differences कुछ ऐसे functions हैं जो naturally as a part of nature, there are some functions which only the feminine bodies can perform. Right? So bearing and rearing of the child, right? This is by nature a feminine function. कि भाई it is only the woman who can produce children. That's a biological allocation of function. Right? अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है कि भाई नेचर ने ही इस प्रकार का डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है, बट ये नेचुरल डिफरेंसेस थियोरी को हम धीरे धीरे we tried to expand on that, and we actually took it to great unnatural extents. Right? तो हमने कहा कि भाई यदि गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड is the function of the feminine body, feeding the child is by nature the natural function of a woman. It's only the mother who can really be feeding the child at birth. Right? पर ये natural differences से हम इस थियोरी को आगे आगे खींचते ले गए और हमने कहा कि भाई देखो, अभी बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के सारे न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करना, घर के अंदर सारे लोगों के न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करना, बच्चों का अपब्रिंगिंग करना, ये सारा किसका काम है? ये महिलाओं के रोल्स बन गए. Right? So what did we do? When we tried, that's what, let's get back to where we started. When we looked at division of labor, right? And we said कौन सा काम किसने करना है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमने एकमात्र आधार जो चुना, that was the आधार of sex. So you said that look, if it is about cooking food, if it is about looking after the nutritional requirements of the family, if it is about looking after children and their upbringing and all that, that is the domain of the woman. Right? और ये घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा कौन कमा के लाएगा? It will be the man who will go out to work. He will work there outside and bring money to run the household. Okay, so what did we do?
We allocated roles within the society on the basis of sex. So, the problematic part here was that we did not leave this to the choice of the people themselves. तो यदि कोई ऐसा हाउसहोल्ड था जिसमें मान लीजिए बहुत genuinely the man was interested in looking after the upbringing of children. The man was interested in staying back home and giving food to the children and looking after them. और यदि हम मान ले that the woman was interested in going out and working and earning money, we did not allow those choices to work. हमने स्ट्रेट जैकेटिंग कर लिया इसका कि भाई look, if you are a woman, this is what you will do, and if you are a man, regardless of what you like or you don't like, you are required to go out, you're required to work, earn money and bring it back home to run the household. और दोस्तों, जहां हमने मनी पिक्चर में लाया, रिमेंबर विथ मनी केम पावर. ओके, एंड दैट्स हाउ जो नरेटिव इसमें से डेवलप हुआ, द नरेटिव वाज that it is the man who is slogging outside the house all the time, doing work, earning money and bringing back the money. तो यदि एक महिला की घर गृहस्थी चलती है तो किस बलबूते पे चलती है? It happens because the man is working outside and earning money, right? So with this money element, there came an element of power, and that is where because of this kind of role allocation where choice did not play any element at all, and you said that look, तुम्हारा घर यदि चलता है तो मैं जो पैसा कमा के लाता हूं उसके बलबूते पे चलता है. That is where there came the idea of superiority of the man, right? So then we multiplied, और जो natural differences theory से जो हमने शुरुआत की वो हमने एक बहुत अननेचुरल एक्सटेंट तक उसको खींच लिया. फिर हम ये सोचने लगे कि यदि बच्ची पैदा होती है घर में, द थॉट प्रोसेस दैट वाज देयर वाज कि भाई इसको कहाँ वैसे भी बाहर जाके कुछ काम करना है, इसको तो आगे जाके घर गृहस्थी ही चलानी है. सो व्हाई इन्वेस्ट मनी इन हर एजुकेशन? Let her learn the household chores, and that is what she is required to ultimately do. तो वो स्किल सेट उसका घर में रह के डेवलप किया जाए, सो यू डोंट नीड टू सेंड हर टू स्कूल. दैट इज हाउ हिस्टोरिकली, मैं आज के जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट हिस्टोरिकली इफ यू ट्राई टू लुक बैक, वी डिनाइड educational opportunities to girls. We denied all opportunities for self-development to women. We said कि भाई महिलाओं को पॉलिटिक्स का क्या समझ में आएगा. इसीलिए याद रखिए, even recall, even a modern and forward democracy like America had a very bad struggle with giving voting rights to women. क्योंकि जो थीसिस, जो आधार था सोच का, वो ये था कि भाई how and why should women participate in the political establishment. तो उनको वोट देने के अधिकार की भी बात ना की जाए. So they were denied the right to vote. They were denied opportunities for education. They were denied an opportunity to go out of the house and face the world and try to develop her own personality, right? And जो इसके कारण जो नैरेटिव हमने निर्माण किया, that was the narrative of the man being the powerful element in the family. So where you spoke about that power coming into the hands of the man, then you started developing that and saying that look, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, therefore you are there. So I have a sense of ownership over what you do. So you will wear what I like. You will talk to people whom I will allow you to talk to, right? Now that was the historical perspective, and feminism presents this picture before us of why did we end up in discrimination against women? Why did we end up into inequalities against women and stuff like that, right? अब ये सारी चीजें जब एक हाथ पे हुई, so we tried to look at why were women vulnerable,
सो इसमें से फीमेल इन्फेंटिसाइड के इंस्टेंसेस हमने देखे, फीमेल फीटिसाइड के इंस्टेंसेस हमने देखे. All these things are lived experiences of people in India, right? Now, amidst this picture of where there was terrible inequality between men and women, 1950 में a major political event happened, and that political event was कि हमारा अपना संविधान फोर्स में आया in the year 1950. और ये जब संविधान हमने हमारे लिए बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जब हमने फोर्स में लाया, एंड वी ट्राई टू यू नो इफ वी ट्राई टू लुक एट व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू से, 1950 में जो संविधान फोर्स में आया, उस संविधान में हमने इक्वालिटी की बात की, उस संविधान में हमने जस्टिस की बात की. And when we spoke of justice, remember, gender justice was also a very important dimension of what the Constitution spoke about, right? अब आपके समाज में परिस्थिति ऐसी थी, right? So women were here, men were here. There was no equality between men and women within the society. ऐसी परिस्थिति में 1950 में हमारा संविधान आया, एंड नाउ दिस संविधान सेड दैट लुक, नाउ ऑनवर्ड्स इक्वालिटी फॉर ऑल, राइट? अब ऐसी परिस्थिति में हम सडनली 1950 में आके कहेंगे कि भाई देखो, आज के बाद देयर इज गोइंग टू बी इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी. इन दिस सिचुएशन वी कुड नॉट रियली हैव डन प्रॉपर इक्वालिटी, क्योंकि वो जिनको कभी भी कोई अवसर नहीं मिले वर्सेस वो जिनको हमेशा सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, ये परिस्थिति में 1950 में आप यदि कहते हो कि भाई देखो अभी जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब इन दिस सिचुएशन दीज सो women were here, they would not have even competed with men for getting a job because they were denied opportunities for even their basic education. And that is why when a constitution that comes into force in the year 1950 talks the language of equality and justice, ऐसी परिस्थिति में यदि हमको सही में इक्वालिटी करने की जरूरत है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इनको कुछ और देना पड़ेगा, कुछ एडिशनल देना पड़ेगा, जिससे हम इनको रेज करके इनकी लेवल तक ला पाए. And once women come at par with men, then you talk the language of equality. Okay? That is how, when we set ourselves on the road to equality and gender justice and all that, 1950 के बाद ज्यादातर यदि हम देखते हैं, हमको दिखाई देता है that post 1950 हमारे देश में कितने ऐसे कानून बनाए गए जो स्पेशली महिलाओं के बेनिफिट के लिए बनाए गए, राइट? अब आमतौर पर यदि आप देखोगे, यू विल से दैट लुक, सिर्फ महिलाओं को ये बेनिफिट क्यों है, पुरुषों को क्यों नहीं है? ये तो इनइक्वालिटी हो गई, राइट? बट ये सारे जो स्पेशल प्रकार के लॉज थे, इनको हमने जस्टिफाई क्यों और कैसे किया? क्योंकि हमने कहा कि भाई आपने शुरू से इनको कुछ डिनाई किया है, इसीलिए यदि वास्तविकता में आपको आज इक्वालिटी चाहिए तो आपको पहले इनको इनके लेवल तक लाना पड़ेगा. Only then you will be able to talk meaningfully about plain equality. Okay? And that is the reason why 1950 onwards, 1950 से शुरू करते हुए आज तक इनफैक्ट हम देखते हैं कि कितने सारे कानून हमारे देश में ऐसे बने which are actually laws that are trying to give something additional to women. अब हम यदि मोटा मोटा ये पिक्चर देखते हैं तो हमको दिखाई देते हैं कि ये प्रकार के जो कानून हैं, there are two kinds of laws that we have passed for women, keeping women in mind. कौन से दो प्रकार के कानून हमने बनाए इस देश में? एक वो प्रकार के कानून थे which were you know protective of women, right? तो ये प्रकार के laws which were protective of women, these laws were made under the overarching assumption
that women are in need of protection. महिलाओं को कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है और इसीलिए ये प्रोटेक्शन के तौर पे हम ये कानून बनाते हैं। ये एक प्रकार के कानून हमने महिलाओं के लिए बनाए। दूसरे प्रकार के जो कानून हमने महिलाओं के लिए बनाए वो थे विच वर नॉट रियली ओनली प्रोटेक्टिव ऑफ विमेन, बट जिन्होंने महिलाओं को नीचे से पुश देने की कोशिश की ताकि वो आके ये लेवल तक मीट कर पाए, राइट? So you know, if we today talk about say 33% reservation for women, let us remember this provision of reservation for women is a step towards giving that push, giving them opportunities which they were never given before, right? तो आज हम यदि जेंडर जस्टिस को ब्रॉडर लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं, हमें ये दो डायमेंशंस नजर आते हैं। On one hand, you see laws which were passed by the state for giving protection to women. तो अभी यदि रिसेंट में देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक ऐसा कानून था जो हमने महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया। आप हमारे क्रिमिनल लॉ की तरफ देखिए, इंडियन पीनल कोड की तरफ देखिए, उस पीनल कोड में आपको एक पूरा चैप्टर नजर आएगा विच टॉक्स ऑफ विच इज लेबल्ड एज ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरफ यदि देखते हैं तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए जो कहते हैं कि भाई यदि कोई महिला को अरेस्ट करना है तो महिला ऑफिसर का वहां मौजूद होना जरूरी है, कि आप रात के 12 बजे के बाद यू कैन नॉट रियली गो टू अ प्लेस एंड अरेस्ट अ वुमन एंड ब्रिंग हर। Now, these are all laws that are trying to be protective of women, that are trying to protect women, right? And there are some laws that are trying to empower women. तो जैसे जब ये कोई स्कीम बनाई जाती है जो कहती है कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन, right? Now that's trying to empower the girls so that we encourage them to go into schools, right? So this has been the twofold strategy of the law in terms of our attempt to bring in gender justice within the community, right? अब जो अनेक प्रकार के कानून हमारे देश में बनाए गए जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के हेतु से बनाए, वी हैव अ लॉट ऑफ सच लॉज दैट आर मेड, ओके? सो यू नो, प्रॉपर्टी के डोमेन में आप देखिए कितने सालों तक महिलाओं को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिला करता था। In fact, leave alone property में share, the woman was looked upon as a property of the man. Now, I don't have all the time in the world, so I'll not speak to you about provisions of adultery and all under our penal code, but they were classic examples, you know, which showed us that how do you look at women? You look at women as the property of the man. ये हमारे कानून ने भी एंडोर्स किया। और जो अभी अभी तक एक प्रोविजन था हमारे लॉ में विच वाज यू नो द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, जो 2018 में हमने सेट असाइड किया, बट 1860 से लेके 2018 तक एडल्ट्री वाज अ प्रोविजन ऑन आवर स्टैट्यूट बुक, जिसने ये एंडोर्स किया, कानून ने भी ये एंडोर्स किया कि भाई यदि एक शादीशुदा महिला कोई शादी के बाहर किसी और आदमी के साथ सेक्सुअल इंटिमेसी रखती है, then that is an offense of adultery. But the section further went ahead and said कि उस महिला का हस्बैंड यदि कंसेंट देता है for this intimacy, then that doesn't amount to any offense at all, right? There are various problematic aspects into that provision, but I'll resist the temptation of going into that, right? आप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की तरफ यदि देखें, सेक्शन 6 of this particular act made a very specific kind of statement. It said, who will be the natural guardian of the child? The law says natural guardian of the child is first the father and then the mother. So, look at how the law also endorsed patriarchy. So, male predominance was not just a social phenomenon, it was also something that the law recognized and endorsed. So, bhai, mahila sara, she'll carry the child for 9 long months in the womb, go through the unimaginable labor pains to give birth to the child, feed the child, look after the child, and at the end of that the law says who is the natural guardian? It's the father
first and then the mother, right? So all in all, the scenario was that somewhere the laws were also very very patriarchal in their outlook. जो आउटलुक 1950 के बाद हमने थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश की, और हमने बहुत सारे ऐसे कानून लाए जो which would either be protective of women or which would try to empower women. Now, out of all the laws which were made for protecting women, one such major law of the modern times is the law that we need to look at today, and that is the law relating to sexual harassment of women at workplaces. अब ये कानून कब बना हमारे देश में? This is a law that was made in the year 2013. Okay, 2013 में ये कानून बनाया गया। अब सवाल ये आता है कि जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस की बात करते हैं, अब आमतौर पर यदि देखा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन has been there since ages, right? सालों से ये चलता आया है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ कुछ एपिसोड्स मीडिया ने बहुत उछाले, इसलिए आपके मेरे ध्यान में वो आए। कुछ कि बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं which have been the lived experiences of women, but they never came on the forefront, right? So the point that I'm trying to make is sexual harassment of women, ये phenomenon देखा जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन आज इस विषय पे बहुत चर्चा होते हुए हमें दिखाई देती हैं, राइट? आज के ज़माने में कितने ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे सामने आते हैं which are actually throwing up cases of sexual harassment of women, right? So if I try to give you some quick examples, way back in the 1980s, which is not very recent, 1980s में KPS Gill और बजाज, इनकी एक बहुत फेमस केस हुई थी which was a case on sexual harassment. So KPS Gill was an IPS officer and Bajaj was an IS officer, और एक प्राइवेट उनके पार्टी में बजाज ने एलिगेशंस किए कि भाई the IPS officer misbehaved with her and tried to sexually abuse her in that party, right? अब मीडिया ने ये न्यूज़ को उस जमाने में बहुत उछाला था. So this was an instance that came into public notice, right? Recent जमाने के examples यदि हम देखते हैं तो look at the whole story of sexual harassment that happened around Justice Ganguly of the Supreme Court of India, right? I'm sure आप में से सभी जनों ने ये story को मीडिया में फॉलो किया होगा, where Justice Ganguly was a former judge of the Supreme Court of India, and an intern of his who was working in his chamber, उन्होंने ये चार्ज जस्टिस गांगुली पे लगाया कि भाई he has sexually harassed me. और फिर जस्टिस गांगुली की केस तो और कंट्रोवर्शियल इसलिए भी बनी थी क्योंकि जब ये निर्णय लिया गया कि एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए टू इन्वेस्टिगेट द होल चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये निर्णय लेते समय जस्टिस गांगुली was himself a part of the bench that ordered this thing to be done, and therefore this became big news in the media. Then you had Pachori's case that happened. You had Shamak Davar, who is the modern day dance sensation. Canadian court में शामक दावर पे कितने सालों तक केस चला था for sexual harassment, right? So the point I'm trying to canvas is कि ये कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आपके मेरे ध्यान में आए क्योंकि मीडिया में हमने इसके बारे में बहुत सुना, लेकिन हजारों ऐसे उदाहरण होंगे जहां महिलाओं ने ये अनुभव तो लिए लेकिन उनकी स्टोरी किसी के सामने नहीं आई because maybe they were not famous personalities, maybe they were women who did not want to talk about it in public and did not want to bring it into public domain at all. So the phenomenon has been old, but I think the discourse is relatively new. तो आज क्या ऐसी चीज हुई है जिसके कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस के बारे में इतनी बड़ी चर्चा करने की
हमें ज़रूरत महसूस होती है। तो यूजीसी से भी ये मैंडेटरी गाइडलाइंस आते हैं, एचआरडीसी में आते हैं, हाँ आपके मेरे कॉलेजेस में आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट पे सेशंस लिए जाएं। सो लेट्स ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाट मेक्स दिस नेसेसरी टुडे। अब इस डिस्कोर्स की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक बहुत प्रचलित केस के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत फेमस केस को डिसाइड किया था इन द ईयर 1997, एंड दैट वाज द फेमस केस ऑफ विशाखा वर्सेस राजस्थान। आई एम श्योर इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने वाले कईयों एकेडमिशियंस को ये केस के बारे में मालूम होगा, कम से कम आपने सुना तो जरूर होगा। So Vishakha versus Rajasthan was a very, very famous case decided in the year 1997. Very quickly, let me just tell you what Vishakha's case was all about. Vishakha ke case mein, the case was all about a woman who was, Bhanwari Devi was the name of the woman, who was working with the Women and Child Development Department of the state of Rajasthan. ठीक है, तो ये जो महिला थी ये स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में शी वाज वर्किंग देयर, राइट। अब उस समय राजस्थान की सरकार ने ये एक एजेंडा बहुत बड़ा हाथ में लिया था, दैट दे वांटेड टू conduct programs and come up with ways through which एक मास अवेयरनेस वो जनरेट करे राजस्थान स्टेट में अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, बिकॉज राजस्थान was and to a large extent still is a state where all these things happen even today, right? तो उस समय राजस्थान की सरकार ने ये एक एजेंडा लिया हुआ था कि भाई चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट हमको लोगों में बहुत अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है। अब ये जो महिला थी भानवारी देवी, शी वॉज अ वेरी वेरी एक्टिविस्ट वुमन, और उसने काफी इनिशिएटिव ये प्रोग्राम के अंदर लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम राजस्थान के बहुत रिमोट गांवों में खुद जाएंगे, हमारे ग्रुप्स जाएंगे, जहां घरों घरों में जाकर हम लोगों से बातचीत करके उनको ये अवेयरनेस निर्माण करेंगे उनके अंदर, राइट। एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस होल प्रोग्राम। एंड what is documented for us tells us कि इनके ये एक्टिविज्म को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। So, what is told in the documented stories is, it tells us that because of these initiatives, they were able to prevent so many child marriages of women, of girls aged 7 and 9 years. Okay, so that was the kind of success their activism got. अब इनका जो प्रयास था, ये महिलाओं का, ये ग्रुप का, where Bhanwari Devi figured very prominently, this success of these people actually angered some elite men within that society. उन्होंने बहुत कोशिश की इस महिला को के एफर्ट्स को दबाने की, बहुत वार्निंग्स दिए इनको कि भाई आपने यदि ये बंद नहीं किया तो you'll face the consequences. But when she did not heed to all this, what happened one day was, जब रोज की तरह अपने ये सब काम के लिए this woman goes out into villages, she was picked up by a group of men, taken to a very very secluded place, and she was subjected to a very very brutal gang rape. Okay, ये गैंग रेप होने के पश्चात, जैसे कि रूटीनली होता है, ये केस क्रिमिनल कोर्ट में गई। अ वेरी टीडियस एंड एम्बैरेसिंग ट्रायल हैपेंड इन द क्रिमिनल कोर्ट, और वो क्रिमिनल कोर्ट में पूरा ट्रायल होने के पश्चात कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई हमारे पास इनफ एविडेंस हमको नहीं मिला, इसीलिए जो 8 men who were involved in that case, even one out of them was not punished. So court ने 8 को free कर दिया and said that you are acquitted and we don't have enough evidence. अब ये होने के बाद this incident actually angered a number of feminist organizations in the country. बहुत उनमें गुस्सा फैल गया, and they were trying to agitate
अब हमने निर्भया के केस में देखा, निर्भया वाज रिलेटिवली रिसेंट, विशाखा's केस वाज वे बैक, ओके। निर्भया के केस में हमने देखा कैसे लोग कैंडल मार्च करने सड़कों पर उतर आए। सो दैट वे यू नो दैट टाइम बहुत सारे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी अनरेस्ट निर्माण हुई कि भाई एक तो ये चीज होती है, आवर women आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड देन द कोर्ट इज ऑल्सो नॉट पनिशिंग देम, राइट। अब इसके रिस्पॉन्स में एक एनजीओ था विच वाज फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस एनजीओ का नाम था विशाखा, राइट। सो यू नो रिमेंबर, जब हम विशाखा के केस के बारे में बात करते हैं, विशाखा इज नॉट द नेम ऑफ दैट वुमन, विशाखा इज द नेम ऑफ दैट एनजीओ, राइट। ये विशाखा नाम के एक एनजीओ ने एक इनिशिएटिव लिया और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने एक जनहित याचिका को फाइल किया, राइट। So a public interest litigation was taken to the Supreme Court. And remember, ये जो जनहित याचिका थी, that this was a PIL. This was not an appeal against the judgment of the criminal court. वो criminal court वाला proceeding अलग था। ये NGO सर्वोच्च न्यायालय के पास गया with a PIL. And what is it that they told the court? This NGO went up to the court and brought it to the notice of the court. They said that look, what is this pathetic position कि भाई आज भी हमारे देश में there is no comprehensive law, हमारे पास ऐसा कोई भी comprehensive कानून नहीं है जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करे, महिलाओं को प्रोटेक्ट करे against what? Against their sexual harassment at the workplace. Now remember, this was in the background of Bhanwari Devi's case, because जब उसके साथ ये घटना हुई तब वो तो अपने काम के लिए निकली थी, she was at the workplace, right? And that is where this brutality happened to her. So this NGO called Vishakha goes to the Supreme Court with a PIL and says that look, what is this pathetic position? We have no law today in existence in our country which is trying to address the issue of sexual harassment of women at workplace. अब जब ये जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के पास गई, तब आमतौर पर यदि देखा जाए, हमारे देश में कानून यदि बनाना है तो कानून बनाने का काम किसका है? संविधान के अनुसार यदि हम जाते हैं तो कानून बनाने का काम सांसद का है, राइट। तो यदि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा होता कि भाई ठीक है, आपने ये केस हमारे सामने लाई जिसके द्वारा आप हमें बता रहे हैं कि भाई इस विषय पे कानून नहीं है, तो न्यायालय ये भी शायद कह सकता था कि भाई कानून नहीं है तो हम क्या करें, वी डू सिंपथाइज विथ यू, वी डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, पर लॉ बनाना हमारा काम है ही नहीं। यदि लॉ नहीं है तो वो सांसद का काम है, ये भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह सकता था। और यदि वो ये कहता तो शायद बेसिकली संविधान के अनुसार यदि हम सोचे, ट्रेडिशनल पद्धति से यदि हम सोचे, तो शायद वो गलत भी नहीं हुआ होता। बट रिमेंबर, इन विशाखा's केस, that is not what the court said. This was a very upset court. This was a very angered and outraged court, which was very much touched by the fact कि आज भी हमारे देश में महिलाएं ऐसी परिस्थिति में रहती हैं कि भाई कोई कानून ही नहीं बनाया गया, कोई ध्यान ही नहीं दिया गया उनकी सेफ्टी के लिए व्हेन दे आर गोइंग आउट फॉर वर्क। जस्टिस वर्मा उस समय हमारे बेंच पे थे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे, एंड द कोर्ट सेज इनफ इज इनफ। यदि कानून नहीं है, सांसद ने कोई कानून नहीं बनाया इस विषय पे, फॉरगेट इट, वी विल ले डाउन द लॉ। इसलिए यदि 1997 का विशाखा का जजमेंट आप में से कोई भी यदि कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, गूगल करेंगे, तो आई एम श्योर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। विशाखा के केस में सबसे पहली बार हमको ये दिखाई देता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस के तौर पे हमें लॉ दिया इस विषय पर। कौन सा विषय? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। कोर्ट ने कहा कि भाई भूल जाओ, सांसद ने बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, फॉरगेट इट। इफ वी आर सिटिंग हियर टू डू जस्टिस,
वी विल नॉट सिट डाउन विथ फोल्डेड हैंड्स। कानून नहीं है तो हम आपको कानून देंगे, हम गाइडलाइंस बनाएंगे इस जजमेंट के अंदर। और कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइंस बना के बात को खत्म नहीं किया, कोर्ट ने आगे जाके उस जजमेंट में कहा कि जब तक सांसद इस विषय पर कानून नहीं बनाएगा, हमारे गाइडलाइंस विल ऑपरेट एज द बाइंडिंग लॉ ऑफ द लैंड। और उस समय जब विशाखा की केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये गाइडलाइंस को पहली बार लिखित स्वरूप में हमारे सामने दिया, उसके बाद इस विषय पर हमें एक्टिविज्म की शुरुआत दिखाई दी। आप जानते होंगे, अक्सर हम कहते हैं, कॉलेजेस में हमें बताया गया विशाखा कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करो, विशाखा समिति को बनाओ। व्हाट वाज दिस विशाखा समिति? दिस वाज व्हाट द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड। तो उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस लिखे गए हैं कि भाई हर वर्क प्लेस में क्या करना चाहिए एम्प्लॉयर ने टू टेक केयर दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नॉट समथिंग दैट अ वुमन इज सब्जेक्टेड टू। फिर उसके अंदर हमको ये बताया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल को बनाया जाए। मैं अक्सर ये कहती हूँ दैट वी शुड बी एक्चुअली कॉलिंग इट द एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल, वी एंड अप कॉलिंग इट द सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल। दैट्स एन आयरनी बट बिसाइड्स द पॉइंट। ये सारे एक्टिविज्म की शुरुआत धीरे 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 1997 के जजमेंट के पश्चात हुई। और उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा जब तक सांसद इस विषय पर लॉ नहीं बनाएगा, हमारे गाइडलाइंस विल ऑपरेट एज द लॉ। जब तक सांसद कानून नहीं बनाएगा। ये कानून सांसद ने कब बनाया? दिस कानून केम टू अस इन द ईयर 2013। ओके, तो यदि हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस, मैंने पहले भी कहा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अनुभव तो महिलाओं को हमेशा से आया। फिर इसके बारे में इतना एक्टिविज्म, इतना सब कुछ करो, प्रोग्राम लो, अवेयरनेस लो, नोटिस बोर्ड पे ये लगाओ ना, फलाना लगाओ, ये सारे एक्टिविज्म की शुरुआत अभी अभी रिसेंटली क्यों हुई? इसकी शुरुआत होती है 1997 में विद द विशाखा जजमेंट। विशाखा जजमेंट के गाइडलाइंस बिकेम द लॉ फॉर अस फ्रॉम 1997 टू 2013। 2013 में ये गाइडलाइंस के आधार पर सांसद ने हमारे लिए एक कानून बनाया जिसको आज हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो 2013 में, अप्रैल के 2013 में ये कानून बनाया गया। तो अभी 97 टू 2013 वी वर गवर्न्ड बाय गाइडलाइंस ऑफ द विशाखा केस। 2013 के पश्चात गाइडलाइंस चले गए, गाइडलाइंस की जगह ये कानून आ गया, राइट? और आपके मेरे लिए, हम लोग जो हायर एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, हमारे लिए 2015 साल में एक और चीज आई विच इज द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2015। यूजीसी द्वारा एक रेगुलेशन बनाया गया 2015 साल में, जो सक्षम कमिटी थी और सक्षम रिपोर्ट बनाया गया। उसके आधार पर यूजीसी ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2015 में एक रेगुलेशन बनाया विच ट्राइज टू टच ऑन द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो आज आपके मेरे लिए यदि हम देखते हैं कि भाई हमारे लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन के क्षेत्र में कौन सा कानून लागू होता है, the canon that we apply or the rules that apply to us, we are governed by two things. Number one, the Act of 2013, and number two, UGC regulations of 2015, जो आपके मेरे लिए, हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हैं। ओके, तो यदि हम ये कानून और रेगुलेशंस ये दोनों की तरफ देखते हैं, बिकॉज बेसिक लॉ कम्स फ्रॉम द 2013 एक्ट, और वो एक्ट के अंतर्गत ये रेगुलेशन को यूजीसी ने बनाया, राइट? तो यदि ये कानून और रेगुलेशंस को हम साथ साथ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 3 चीजों के बारे में बात की गई है। जैसे कि वो कानून का नाम है, हमने कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ओके, तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं
ये कानून और ये गाइडलाइंस की 3 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी कौन सी है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट को हमें प्रिवेंट करना है, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रयत्न करने हैं, राइट? उस फेनोमेनन को प्रोहिबिट करने की कोशिश करनी है, राइट? और उसके बावजूद यदि ऐसे कोई इंस्टेंसेस होते हैं तो उसके रिड्रेसल के लिए क्या किया जाए, दैट इज द थर्ड थिंग दैट दिस लॉ एंड दीज रेगुलेशंस डील विथ, राइट? अब प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन के तौर पे क्या किया जाए, इसके लिए आप और मैं आज जानते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि भाई कॉलेज को ये कंपलसरी हो गया है कि उनके प्रॉस्पेक्टस में, हमारे कॉलेज का जो प्रॉस्पेक्टस निकलता है उसमें हमें ये डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है दैट वी आर एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, हमारे कॉलेज के अंदर टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाएं। That is a mandatory part of what the regulation and the law expects us to do, कि इसके अवेयरनेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आज भी ये प्रोग्राम में यदि ये लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है विच इज सेइंग दैट लुक स्पेसिफिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट पे एक लेक्चर लिया जाए, द पर्पस ऑफ द लेक्चर इज दैट वी हैव टू ट्रेन आवर ट्रेनर्स, ओके, कि we as teachers are expected to be the agents through which you will make sure that our campuses are free of sexual harassment, right? सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लिया जाए, नोटिस बोर्ड पे जगह जगह पे हमारे जो कमिटीज होते हैं उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर्स लिखे जाएं, राइट? सो दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज दैट द लॉ अडॉप्ट्स फॉर प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ओके? लेकिन इसके बावजूद यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया गया है, इस कानून के अंतर्गत भी है और यूजीसी के रेगुलेशन के अंतर्गत भी है, राइट? नाउ बिफोर आई कम टू द रिड्रेसल मैकेनिज्म, कुछ बेसिक चीजें इस लॉ के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एंड आई विल just want to share my presentation for a short time. 1 minute. Okay. Can all of you see the presentation? Yes, ma'am, it is Yes, visible. madam. Okay. Yes, madam. मैं ना सारे slides तो नहीं दिखाऊंगी. I will go to the slides that, okay, I'll start off from here. Right. If you can see the slide, अब जब कानून हमने बनाया टू डील विथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब कानून के साथ दिक्कत क्या है कि जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करते हैं, द कानून नीड्स टू डिफाइन व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट? सो बिकॉज आप जानते हैं लॉ में सारा इट्स ऑल अ गेम ऑफ हाउ यू डिफाइन एंड व्हाट वर्ड्स यू यूज एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम क्विकली देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को इस कानून के अंतर्गत कैसे डिफाइन किया गया है, and just take a careful look at the slide because I'll come back to something on the slide at the end of my talk, right? So how does it define? It says sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts. Now the word unwelcome is very important, obviously, because if it is a welcome act, it doesn't amount to harassment, right? So it says it includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior, whether directly और बाय इम्प्लीकेशन। बाय इम्प्लीकेशन मतलब इनडायरेक्टली। कौन से एक्ट्स को वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पे डिफाइन करता है? नंबर 1, इट सेज फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, राइट? तो जब कोई फिजिकल एडवांस किया जाता है विच यू नो इज एन एडवांस फॉर सेक्सुअली अब्यूजिंग समबडी, और फिजिकल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है एज अ सेक्सुअल अब्यूज, दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 2, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ओके, कि आप ये सेक्सुअल फेवर दो तो आई विल मेक श्योर दैट you are promoted, I will make sure that everything favorable happens to you. So sexual favors.
मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये वाला पॉइंट, बिकॉज हमारे यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं दे डील नॉट जस्ट विथ you and me as employees, it also deals with children on our campus. और लड़के लड़कियों में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कुछ कमेंट पास कर दिया, रिमार्क पास कर दिया. Now if those remarks are sexually colored remarks, they amount to sexual harassment under the law, right? Then showing pornography, और ये लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट सेज एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, राइट? तो जो ऊपर के हैं, सेक्सुअल फेवर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी, ये छोड़ के एनी अदर एक्ट ऑफ फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कैरेक्टर, लेकिन जो सेक्सुअल नेचर का है, that will amount to sexual harassment, right? This is how the law defines it. The next slide is also talking, I'll quickly take you through this. It's talking about what is sexual harassment. It says the following circumstances also, if present in connection with an act or behavior of sexual harassment, will amount to harassment. What are those acts? Implied or explicit promise of preferential treatment. जैसे कि मैंने कहा, ये फेवर कर दो तो मैं preferential treatment ensure karunga. So you're promoted, things become easy for you on campus, right? Preferential treatment. Second is implied or explicit threat of detrimental treatment. धमकी देना कि भाई ये करो वरना तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा, right? So detrimental treatment. Implied or explicit threat about present or future employment status. Again, या तो धमकी देना या तो कहना कि भाई प्रमोशन कर देंगे आपका, right? So favorable or unfavorable treatment. Interference with the woman's work or creating an intimidating or hostile or offensive work environment for her, right? तो जब कोई महिला काम पे आती है तो ऐसा एक वातावरण निर्माण करना which giving some kind of objectionable looks, passing some gestures, सीटी बजाना उनको देख के, which makes her very uncomfortable and the environment becomes very hostile. Humiliating environment that is likely to affect the health or safety of the woman. These all also amount to sexual harassment under the law, right? तो कानून सेक्सुअल हैरेसमेंट को इस प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश करता है. नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू. अच्छा, इसको हम स्किप कर देंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. लेट मी टेक यू टू हाउ द एक्ट डिफाइन अ वर्क प्लेस, क्योंकि कानून क्या कहता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वेयर? एट द वर्क प्लेस. So obviously you also need to define what constitutes a workplace. तो ये कानून के अंदर हम देखेंगे कि जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है, तो हर प्रकार का सेक्सुअली कलर्ड एक्ट कैन बी काउंटेड इन एज सेक्सुअल हैरेसमेंट. इस प्रकार की ब्रॉड डेफिनेशन कानून ने दी है, राइट? वैसे ही वर्क प्लेस को भी कानून ने बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है, right? So it says it includes every kind of a workplace, organized, unorganized. फिर it applies to government bodies, public, private sector, non-governmental, commercial activities करने वाला कोई organization, vocational, educational, entertainment, etc., etc. Sports institutions, stadiums, hospitals, nursing homes, ये सारे workplace के definition में आते हैं, right? So also remember that यदि मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प कोई आती है, डोमेस्टिक काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए मैं किसी को रखती हूँ मेरे घर में, रिमेंबर माय हाउस इज अ वर्क प्लेस फॉर दैट वुमन. ओके, सो वर्क प्लेस इज वेरी वेरी ब्रॉडली डिफाइंड. और ये अगली स्लाइड जो है वो आपको ये बताने की कोशिश करती है कि भाई जैसे सपोज मैं काम पे जाती हूँ, कंपनी के बस से जाती हूँ, राइट? तो वो जो बस में मैं कम्यूट करती हूँ, दैट बस इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस. वहां पे यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट मेरे साथ होता है, आई कैन स्टिल ब्रिंग इट विद इन द कवरेज ऑफ दिस एक्ट. या तो कभी हमारे काम के लिए हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं और किसी और जगह पे जाते हैं और वहां आई एम सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो जगह भले ही इट मे नॉट बी द प्रेमाइसेस ऑफ माई कॉलेज और द प्रेमाइसेस ऑफ माई वर्क प्लेस, but that will still count in as a workplace. Remember, भनवारी देवी के साथ जो हुआ था वो कुछ इसी प्रकार का था
कि जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ वो उनके ऑफिस के प्रिमाइसेस में नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस के काम से वो महिला कहीं और गई थी, एंड दैट इज वेयर थिंग्स हैपेंड विथ हर. सो वर्कप्लेस इज वेरी वेरी ब्रॉडली डिफाइंड अंडर द लॉ, राइट. लाइकवाइज एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय को भी इस कानून ने बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है ताकि हर प्रकार के एम्प्लॉयज इसके अंदर हम ला पाएं. So, it includes regular, temporary, ad hoc, engaged on daily wage basis, through agent employed है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जैसे भी प्रकार के सॉरी all these kind of employees do count in as employees for purposes of this law. Just give me a minute, please. All right. नाउ हाँ, अभी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, ये सारे प्रयास आप करें, अवेयरनेस डेवलप करें, प्रिवेंट करें, प्रोहिबिट करें, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई इंस्टेंस होता है तो हम क्या करें. तो अब ये कानून के अंतर्गत हमें बताया गया है कि इस कानून में, मतलब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द 2013 एक्ट, ओके. इस कानून के अंतर्गत रिड्रेसल के लिए, राइट, ऐसे प्रकार के इंसिडेंसेस यदि होते हैं तो उनके साथ डील करने के लिए दो प्रकार के कमिटीज की बात ये कानून करता है. What are those two committees? One is what you call as the Internal Complaints Committee. हम शॉर्ट में आजकल इसको ICC कहते हैं, राइट. इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कहाँ पे बनाई जाती है? हर ऐसे वर्क प्लेस पे ये कमिटी को बनाना अनिवार्य है. कैसे प्रकार की वर्क प्लेस? जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मोर देन 10, ओके. जहां 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हों, ऐसी जगह पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को बनाना अनिवार्य है, राइट. एंड द लॉ टॉक्स अबाउट heavy penalty that can be imposed in case you have not constituted the ICC, in case the ICC is not doing what it is expected to do. इसके अगेंस्ट बहुत heavy penalties impose किए जा सकते हैं, right? और दूसरी कमेटी जो, अब ये जो आईसीसी होती है ये तो एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूट करेगा अपने खुद के वर्क प्लेस में, लेकिन एक और कमेटी की बात ये कानून करता है विच इज कॉल्ड एज द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है एंड इट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु कॉन्स्टिट्यूट दिस कमेटी कॉल्ड द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, राइट. तो रिड्रेसल मैकेनिज्म में दो कमिटीज की बात की गई है. वन इज आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, एंड अनदर इज द लोकल कंप्लेंट कमेटी. अब लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को क्यों बनाया गया? यदि आप आईसीसी के पास नहीं जा सकते या यदि कभी आईसीसी है नहीं, राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में यदि कोई घर का काम करने के लिए कोई आती है, बाई आती है, अब मैं घर के अंदर तो कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाऊंगी, राइट. तो यदि ऐसी महिला को कोई अनुभव आता है तो उसके पास आईसीसी है ही नहीं जाने के लिए, तो वो कहाँ जाएगी? शी विल गो टू द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट. अब आपका और मेरा जो संबंध आता है इन आवर एजुकेशनल स्पेसेस, we are more concerned about the internal complaints committee, right? So let me talk about the internal complaints committee, but 1 minute. Yes. सी ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये आईसीसी के कॉम्पोजिशन की बात करती है अंडर द 2013 एक्ट, ओके. बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस क्योंकि आपके मेरे लिए कॉलेजेस में जो रेलेवेंट है वो ये आईसीसी का कॉम्पोजिशन है जो यूजीसी के रेगुलेशन के अंतर्गत हमको दिया गया है, राइट. तो हमारे कॉलेजेस में जो आईसीसी बनाई जाती है
वो इस कॉम्पोजिशन के अनुसार बनाई जाती है. नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पोजिशन लुक लाइक? इट सेज हर आईसीसी की एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर आईसीसी का रहेगा, राइट? नाउ दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू बी अ वुमन, has to be a senior level woman. अब सीनियर लेवल वुमन मतलब ये कहा जाता है कि मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक के या डेजिग्नेशन के होने चाहिए. प्रोफेसर के डेजिग्नेशन के हो तो और भी बेहतर है, राइट? सो एनी सीनियर लेवल वुमन विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. Remember, presiding officer of the ICC will always be a woman according to the regulation, right? So one presiding officer plus 2 members from the teaching staff, 2 from the non-teaching staff. तो इसमें सारे सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. तो 2 मेंबर्स टीचिंग स्टाफ में से आप लेंगे, 2 मेंबर्स नॉन टीचिंग स्टाफ में से लेंगे. अब यहां पर महिला हो या पुरुष हो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि नॉर्मली स्पीकिंग ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जाए जो शायद महिलाओं के इश्यूज में, महिलाओं के has some inclination towards women gender studies and women's issues, या सोशल सर्विस के तरफ इंक्लिनेशन है, या लीगल नॉलेज जिनको है, ऐसे लोगों को इसमें नॉमिनेट किया जाए. तो 2 मेंबर्स टीचिंग स्टाफ से, 2 मेंबर्स नॉन टीचिंग स्टाफ से, 3 स्टूडेंट्स. सो यू आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू स्टूडेंट्स एज वेल. 3 स्टूडेंट्स इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और इनको आपको सारे लेवल्स से लेना है जो जो लेवल्स आपके इंस्टीट्यूशन में है, यूजी लेवल, पीजी लेवल, पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स, राइट? तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स को लिया जाए plus 1 outside member. Now this 1 member will be from an NGO, outside NGO, which is committed to the cause of women, right? ये उसका constitution है, composition है इस कानून के अनुसार, right? So 1 presiding officer, 2 members of the teaching, 2 of the non-teaching staff, 3 student representatives who are elected, right? And 1 outside member from an outside NGO. अब ये कॉम्पोजिशन में द ओवरऑल कंडीशन इज दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट नेसेसरीली बी women. ओके. अब ये लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को भी मैं स्किप करूंगी, इसका बहुत हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है. राइट नाउ, अब यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे कैंपस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट होता है, तो हम उसके साथ कैसे डील करें. अब इसमें आई एक्चुअली डोंट वांट यू टू लुक एट दिस स्लाइड एज मच एज आई वांट यू टू लुक एट. ओके ठीक है, चलो इसको लेते हैं पहले. सेक्सुअल हैरेसमेंट का यदि कोई इंसिडेंट होता है हमारे कैंपस पे, तो उससे हम कैसे डील करें. अब कानून ये कहता है कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो पहली बात तो ये है कि वो महिला को रिटन में कंप्लेंट देना पड़ेगा. किसके पास देना पड़ेगा? आईसीसी के पास देना पड़ेगा, राइट? नाउ दिस हैज टू बी अ रिटन कंप्लेंट. और ये कहा गया है कि यदि वो महिला को कोई प्रॉब्लम आता है इन गिविंग अ रिटन कंप्लेंट, the ICC has to make sure that all assistance, or the college will have to make sure that all assistance is given to the woman to present that complaint in writing. Okay, तो पहली स्टेप हमारी है कि राइटिंग में नोटिस कंप्लेंट दी जाए आईसीसी के पास, राइट? ये स्टेप वाइज मैं आऊंगी थोड़ी देर में कि कॉलेजेस में कैसा होता है ये. बट देयर इज वन थिंग ऑन द स्लाइड दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, व्हिच इज द थर्ड पॉइंट ऑन द स्लाइड, राइट? इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसीलिएशन प्रोसीडिंग. ओके, कंसीलिएशन मतलब यदि मैंने कंप्लेंट डाल दी और उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि भाई जाने दो, अभी मुझे ये मैटर को और फैलाना नहीं है, it's getting very embarrassing for me, so I don't want to go ahead with it, right? So I can access something called as conciliation proceeding. conciliate कर लेना ताकि इंक्वायरी आगे ना जाए, राइट? अब ये कंसीलिएशन प्रोसीडिंग के 2 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है दैट कंसीलिएशन विल ऑलवेज बी at the initiative of the woman. Okay, the man cannot initiate the conciliation proceeding. This is condition number 1. ये 2000 के लॉ के अंतर्गत है. एंड नंबर 2 कंडीशन इज कि ये कंसीलिएशन प्रोसीडिंग में
मॉनेटरी सेटलमेंट कभी भी नहीं की जा सकती. सो इट कैनॉट बी द केस दैट द मैन सेज दैट चलो मैं 5-10 हजार रुपए दे देता हूं, ये मैटर को क्लोज कर दो. सो देर कैन नेवर बी अ मॉनेटरी सेटलमेंट. और ये जो कुछ कंसिलिएशन होता है ये डायरेक्टली पार्टीज के बीच आपस में नहीं हो सकता. इट हैज टू बी थ्रू द आईसीसी ऑलवेज, राइट. फिर जब यदि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग करने के बाद सेटलमेंट हो गया कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा के आईसीसी ने ये कर लिया, वार्निंग दे दी और फिर सेटलमेंट हो गया, तो फिर आगे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी. लेकिन यदि कोई सेटलमेंट नहीं होता है then you initiate the inquiry. Okay, so this is one important part. Now I will skip this slide but I'll take you to the next slide. Yeah, this is giving us a time bound program कि हमारे कॉलेजेस में ये कैसे होगा. यदि इंसिडेंट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट का तो 30 दिन के अंदर रिटन कंप्लेंट आईसीसी के पास जानी चाहिए. ये 30 दिन का एक बेसिक फर्स्ट टाइम पीरियड दिया गया है. ये एक्सटेंडेबल भी है यदि हम दिखा सके कि भाई क्यों 30 दिन के अंदर कंप्लेंट नहीं की गई, राइट. रिटन कंप्लेंट आईसीसी को की गई तो आईसीसी क्या करेगा. आईसीसी विल फर्स्ट गिव अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट टू द रेस्पोंडेंट. जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल की गई है उनको कंप्लेंट की कॉपी दी जाएगी. इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है. विद इन 7 days द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट विल बी गिवन. कंप्लेंट की कॉपी ऑपोजिट पार्टी को देने के बाद 10 दिन का समय उनको दिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे. ठीक है. जब उनका रिप्लाई आ जाता है तो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है, रेस्पोंडेंट का रिप्लाई है, उसके बाद आईसीसी इंक्वायरी की शुरुआत करेगा, राइट. ये इंक्वायरी को आईसीसी को 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है. ये इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाती है दोनों पार्टीज को सुनने के पश्चात, उनके जो कुछ एविडेंसेस होंगे वो लेने के पश्चात, ये सारे प्रोसेस को खत्म 90 दिन में करना है. ये खत्म होने के पश्चात आईसीसी अपना इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में अपने जो कुछ फाइंडिंग्स होंगे इंक्वायरी के वो उसके अंदर लिख के 10 दिन के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी विद इन 10 days इट विल फाइल द रिपोर्ट विथ the relevant authorities. In our case, the relevant authority is always the principal of the institution. Then the higher educational institution will act on the basis of the report within the next 30 days after the inquiry report is given, right. और यदि ये इंक्वायरी रिपोर्ट से कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी सहमत नहीं है तो अपील की जा सकती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अगले 30 दिन में. अब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारे कॉलेजेस में आमतौर पर यदि प्रिंसिपल तक रिपोर्ट आ गई एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू कैन अपील टू द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज सेइंग कि भाई आपको ये मान्य नहीं है एंड देन यू लुक इनटू इट टू सी वेदर एन इंक्वायरी नीड्स टू बी डन अगेन. ओके, सो दिस वे द अपील कैन बी फाइल्ड विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 30 days, राइट. ये हमारे 2015 के रेगुलेशन में हमारे कॉलेजेस के लिए लिखा गया प्रोसीजर है. इफ देर इज अ फाइंडिंग ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यदि आईसीसी को लगता है सारी चीजें देखने के बाद कि भाई हाँ वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो देन इफ द परपेट्रेटर मतलब हैरेसमेंट करने वाला इंसान यदि एम्प्लॉई है उस कॉलेज का, राइट, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ मिसकंडक्ट and he will be dealt with under the service rules. Okay, so that's treated to be a misconduct in service. और जो भी सर्विस रूल्स कहते हैं, माइनर मिसकॉन्डक्ट होगा तो माइनर पनिशमेंट दे सकते हैं, यू नो पनिशमेंट कैन बी व्हाट द सर्विस रूल्स अलाउ. मेजर मिसकॉन्डक्ट है तो मेजर पनिशमेंट भी दी जा सकती है, विच इंक्लूड्स माइंड यू इवन आस्किंग फॉर services to be terminated. That also can be done if there is a major finding of misconduct, right. If the perpetrator मतलब sexual harassment करने वाला यदि student है तो it will be treated as a violation of the disciplinary rules और उस बच्चे के साथ या उस बच्ची के साथ डिसिप्लिनरी रूल्स के हिसाब से एक्शन ली जाएगी, which again if it is a major misconduct it can result into rustication or expulsion of the student from the college, right. अब सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अंतर्गत कि जो हमारा 2015 का रेगुलेशन है
इसके अंतर्गत it's not only the woman, it is open for even the man or the boys to access this particular procedure, right? I will come back to this point in just 5 minutes. I think I have another 10 minutes left, madam. Roughly around 10 minutes, probably. Yes, madam. It is up to Yes. 12:30. Yes, I'll wind नहीं up by होता है तो you can extend 5 to 10 No, minutes. I'll try my best to wind it Yes, up. yes, ma'am. Right? Now, I'm just coming to the last part of this presentation. Okay, let me skip this as well. Yes, this is the slide I want to show all of you. See, हमने जो ये 2013 के कानून की बात की या रेगुलेशन की बात की 2015 की, ये सारे this is a civil mechanism, right? I hope you understand the distinction between civil and criminal. क्रिमिनल जहां होता है वहां वो ऑफेंस कहलाता है, पनिशमेंट भी क्रिमिनल ऑफेंसेस के प्रकार की होती है जहां जेल में इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा एटसेट्रा, राइट? बट द 2013 एक्ट इज एक्चुअली अ सिविल लॉ, और इसीलिए उसके अंतर्गत यदि हैरेसमेंट का फाइंडिंग है तो मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा उसको, और मिसकॉन्डक्ट के लिए जो हमारे सर्विस रूल्स में प्रोविजन है उसके अंतर्गत डील किया जाएगा, राइट? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 2013 साल में ही हमारे देश का जो बेसिक क्रिमिनल लॉ है, जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, इस पीनल कोड में भी एक अमेंडमेंट लाया गया 2013 साल में ही, जिसके द्वारा हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर किया है, राइट? अब सेक्शन 354A जो है पीनल कोड का, दैट डिक्लेयर सेक्सुअल हैरेसमेंट टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि ओवर एंड अबव, मतलब यदि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है मेरे कॉलेज कैंपस में, तो मैं 2013 के वो कानून के अंतर्गत तो कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ, इंक्वायरी आईसीसी के सामने इनिशिएट कर सकती हूँ, वो सारा प्रोसीजर तो मैं कर ही सकती हूँ। लेकिन उसके एडिशन में I can also go to the police station and file an FIR against that man whom I am alleging to have committed sexual harassment against me, right? So remember, 354 penal code is in addition to the procedure given in the 2013 act, okay? अब ये 354A जो है, it has been added, which makes sexual harassment a punishable criminal offense, और इसके लिए जो पनिशमेंट हमारे क्रिमिनल लॉ ने प्रिस्क्राइब की है, दैट रेंजेस फ्रॉम रिगरस इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 1 year to 5 years, ओके? तो दो प्रकार के इम्प्रिजनमेंट्स होते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जहां आपको सिर्फ अंदर किया जाता है, जेल में भेजा जाता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज जहां सिर्फ जेल में भेज के खत्म नहीं होता, यू आर सब्जेक्टेड टू रिगरस एक्टिविटीज इनसाइड द जेल, right? So rigorous imprisonment from 1 year to 5 years is the punishment prescribed under section 354A of the penal code for the offense of sexual harassment, right? Now, with this, let me just stop the presentation because, all right. Now this is what हमारा कानून कैसे डील करने की कोशिश करता है with sexual harassment, right? So it's a very rigorous piece of law जिसमें हमने sexual harassment को भी बहुत broadly define किया है, कोशिश की है कि हर प्रकार का every form of sexual harassment can be brought within the coverage of the law and stuff like that, right? Up towards the end of my talk, I have about 5 to 7 minutes left. Towards the end of my talk, as I told you in the beginning, मैं कुछ बेसिक सवाल आपके समक्ष उठाना चाहूंगी, and I will appeal to all of you that we as educated members of the society, we must engage into some serious thinking over these questions, right? अब यदि हम देखते हैं, जैसे कि शुरुआत में कहा कि जब हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, तो आज जेंडर इश्यूज आर नॉट इश्यूज दैट आर कन्फाइंड टू विमेन अलोन, ओके?
और हमने हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड करने की आज ये समय की मांग है, right? Now, from that perspective, if we try to look at this whole कानून and everything that is dealing with sexual harassment, कुछ बेसिक सवाल, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में आते हैं जो मैं आपके समक्ष शेयर करना पसंद करूंगी. Now, one big problem which I personally feel is a problem. You may have different opinions and you can feel free to share them with me. Now, one basic problem that I have with the 2013 law is that this is not a gender neutral law. Okay? ये legislation अपने आप में basically gender neutral law नहीं है. हालांकि आज अभी अभी रिसेंटली कुछ जजमेंट्स कोर्ट के आए हैं जिसमें कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन किया कि भाई अभी इसको जेंडर न्यूट्रल लॉ के तौर पे हमें देखना पड़ेगा. अब जब मैं कहती हूं कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, मतलब व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू से? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कैनवस इज कि इस कानून के अंतर्गत कंप्लेंट कौन कर सकता है? सिर्फ एक महिला कर सकती है, राइट? So it's only the woman who can file a case against whom? Against a man for sexual harassment, right? If ever a man wants to file a case against a woman for sexual harassment, can the man do that? Basically, under the original 2013 Act as it is framed, it was not possible for the man to do that. Okay, so the only matrix in which this particular law, 2013 law, tries to look at sexual harassment is she versus he, right? He versus she का कोई प्रोविजन ही इस कानून में बनाया नहीं था. Now this is subject to the rider that, as I told you, recently कुछ जजमेंट्स हमारे कोर्ट्स के आए जिन्होंने ये बहुत प्रोमिनेंटली इस बात पे डिस्कशन किया कि भाई आज वो दौर आ गया है जब हमें इस कानून को जेंडर न्यूट्रल लेंस से देखने की जरूरत है, राइट? सी एक हाथ पे हम रेप को भी, आज जो हमारे सांसद में डिस्कशन शुरू है वो ये है कि क्या रेप के ऑफेंस को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए. Okay, now while on one hand we are engaging into those kind of discussions, on another hand you make a law as recent as in 2013 which is not designed to be a gender neutral law. Now remember, this somewhere from the futuristic perspective can be something which is problematic. Okay, उस कंपैरिजन में मैं कहूंगी कि हमारे यूजीसी के जो 2015 के रेगुलेशंस हैं, दे आर जेंडर न्यूट्रल. सो अंडर द 2015 रेगुलेशन, इट डजंट लुक एट that regulation only from the matrix of she versus he. They allow you to look at it from the matrix of either she versus he or he versus she, or even in the contemporary times you can also have issues of sexual harassment which are premised as she versus she and he versus he, right? In an age where you are talking about same-sex intimacies, where you're talking about transgenders being the recognized gender, I think हमारे ये डिस्कशन को, ये डिस्कोर्स को आज उतना ब्रॉड होना जरूरी है कि ये सारे डायमेंशंस को हम उसके अंदर ला पाए, राइट? अब हम यदि हमारे देश में जो सारी लीगल डेवलपमेंट हुई है उसका कोर्स यदि हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भाई महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रो विमेन लेजिस्लेशंस बनाए गए. जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला लॉ भी बेसिकली इट वाज अ वेरी वेरी प्रो विमेन लॉ, राइट? बट द somewhere a trouble that I as a member of the society often tends to sense is that only having pro women laws, is that really going to solve the problem with which we had started the whole story? जब भी हम ब्लैंकेट लॉज, ये प्रकार के लॉज को मैं कहती हूं ब्लैंकेट लॉज. whenever you pass blanket laws, रिमेंबर, जितना आप उस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करते हैं उस कानून के द्वारा,
उतने ही नए प्रॉब्लम्स को आप निर्माण करने की क्षमता रखते हैं. The biggest example that I can cite, I don't know, all of you must have probably heard of a very, very problematic provision in the law today, which is called as Section 498A of the Penal Code. मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है या नहीं. There is some new thinking that is coming up, which says that 498A is a very problematic part of the law. Why is it problematic? 498A is also a blanket law. बट रिमेंबर, ब्लैंकेट लॉज जब आप बनाते हो, तब यदि ये प्रकार के कानून का कभी मिसयूज होता है, they result into a picture which is very, very upsetting. ओके, अब 498A जैसा प्रोविजन है जो क्या कहता है. 498A सेक्शन हमको बताता है कि यदि शादी के 7 साल के अंदर अंदर, विद इन 7 years of marriage, if a woman goes to the police station and makes a complaint in the police station कि भाई मेरा husband या मेरे relatives of the husband are treating me cruelly, यदि 7 साल के अंदर अंदर ये कंप्लेंट एक महिला पुलिस स्टेशन में जाके डालती है, then finish. The law gives the power to the police to directly come and arrest the husband, to directly come and arrest the relatives of the husband. And remember, this is made a non-bailable offense under the law, right? अब जब ये कानून को हमने बनाया, whether it is 498A, whether it is sexual harassment law, जब बनाया गया तब there was a very valid purpose in making the law. क्योंकि हमको हमारे समाज के अंदर जब हमने देखा कि भाई महिलाएं आर सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ हॉरिबल इंस्टेंसेस, इनको खत्म करने की हेतु से हमने ये कानून बनाया. And that कानून was the need of the hour. Okay? But यदि इस कानून को कभी मिसयूज किया जाए तो उसके जो रेपरकेशंस होते हैं, they are likely to be equally dangerous repercussions. Okay? जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्लाइड्स दिखाए, I showed you the slide that tried to define what sexual harassment is. अब हमने इतना ब्रॉड पद्धति से सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया है, एंड डिफाइनिंग इट ब्रॉडली इज नॉट माय प्रॉब्लम, बट there is a possibility, and I'm saying, looking at it only as a possibility, which is why I'm floating this thought before all of you. I am not trying to say कि भाई this is what is happening in all cases. But क्या होता है कि जब आप इतने ब्रॉडली और इतने प्रो विमेन एंगल से कोई भी लॉ को बनाते हैं, तो यदि मैं चाहूं that I want to actually ruin the career of my male colleague, remember, under this law it becomes quite easy for me to do that. Okay, so there are so many instances where it is very easily possible that I can misuse the law and not use it really for the legitimate purpose for which the law has been passed. Now, please do not misunderstand me. I am not before you today to make out a case कि भाई महिलाओं को हमारे देश में अभी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. I am not making that statement. Women are still in need of protection through law. लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि जिन महिलाओं को वास्तविकता में ये प्रकार के कानून की जरूरत होती है, अक्सर ये हम देखते हैं कि उन महिलाओं को पता भी नहीं होता कि ये कानून उनके लिए बना है. And there could be, I'm saying that this is just certain things that we are seeing on the surface right now, that there could be a possibility that there is a new class which might emerge, which will want to use the law for the wrong purposes. And this is where I think we as educated members of the society need to think and rethink. We need to speculate over the issue and see how we could avoid this from happening. Again, I'm clarifying. I'm not making out a statement that this is what is happening in every case, but this is a very, very realistic possibility of the future. And that is why, though I personally belong to the field of law,
मैं फर्मली एक बात को मानती हूं कि केवल कानून बनाने से हम समाज के कोई प्रॉब्लम को कभी डील नहीं कर सकेंगे। आपने एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये प्रकार के ब्लैंकेट लॉज को बना दिया, फिर आपने ये सोचा नहीं कि भाई इसको कैसे यूज किया जा रहा है, वेदर दिस द मिसयूज इज हैपनिंग मोर देन द यूज। इफ यू डोंट स्पेक्यूलेट एंड डोंट थिंक ऑन दिस, रिमेंबर हम ओरिजिनल प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे ही नहीं, but parallelly we will give birth to newer problems which we will have to eventually solve. So the only difference that will happen probably is कि आज हम discussions, seminars, conferences लेते हैं on human rights of women. Maybe 20 years down the line, we will be holding conferences and seminars on human rights of men. So have we really solved the problem? We've not solved the problem. We've created newer ones. Okay. So I think that as educators, as trainers who are always, our profession gives us a wonderful advantage of being in live contact with the new generation always. तो हम हमारी इस पोजीशन को यूज करके मैं ये मानती हूं कि हमने आज हमारे न्यूअर जनरेशन को सही पद्धति से ट्रेन करना जरूरी है। हमने हमारे लड़कियों को, हमारे घर के अंदर की लड़कियों को, हमारे महाविद्यालय के अंदर की लड़कियों को ट्रेन करना जरूरी है। उनको बताना जरूरी है कि भाई देखो, ये प्रकार की कोई घटना आपके साथ यदि होती है तो आप उसको टॉलरेट बिल्कुल ना करें। ये कानून बनाया है आपके लिए, मेक यूज ऑफ द लॉ, बट वी हैव टू टेल द गर्ल दैट लुक, द लॉ इज मेड फॉर यू, यू हैव टू बी अ रेस्पॉन्सिबल यूजर ऑफ द लॉ। यदि कुछ घटना आपके साथ होती है तो हिम्मत रखिए, उस कानून का यूज कीजिए और उस कानून का यूज अभी कीजिए। ये हिम्मत, ये करेज लड़कियों को करेज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। इफ वी डू दैट, I think we will be able to prevent the Me Too kind of movements that happened, jahan 25-30 saal baad, you heard a woman saying that 25 years ago this man had done this to me. Why? Because we had not equipped our women with the necessary courage for doing that. We have to tell our girls that look, the law is there to protect you. आज क्या हो रहा है मैं बताऊं आपको कि घरों के अंदर भी, even somewhere where parents are talking to their girls, हमने ये गलती कभी भी नहीं करनी है। डोंट टेल योर गर्ल्स दैट लुक, डोंट बी अफ्रेड। शादी करके जा रही हो, डोंट बी अफ्रेड, लॉ ठोक देना तुम्हारे इन लॉज पे, तुम्हारे हस्बैंड पे। वी हैव टू मेक आवर गर्ल्स अवेयर, but we have to make them aware of the responsibility that comes with it as well. Likewise and equally, we have to make our boys at home and in classrooms aware of the fact that they had better treat girls and women with respect. I think unless this effort is made, आप कितने भी कानून क्यों ना बना लो, कितने भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस क्यों ना बना दो, आप समाज के इस प्रॉब्लम से कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। The biggest problem with law is that law depends for its enforcement on agencies that are outside its own control. लोग उस लॉ के बारे में क्या सोचेंगे, कैसे उसको यूज कर, ये लॉ के कंट्रोल में नहीं है। So what we as educators need to do is to really train and shape mental attitudes of the newer generation. The day we do that, probably we will no longer see the need of having sessions like these that talk about laws dealing with sexual harassment. Thank you very much to all of you for having been such patient audience. Thank you very much, madam. And in case there are any questions, I'm ready to take them. Thank you. Thank you so much, ma'am. किसी को कुछ पूछना है, you can ask in Marathi also. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा, किंवा काही फीडबॅक द्यायचा असेल, any feedback? Yeah, please feel free to do that if you have anything to Ma'am, I want to ask one thing. Yes, please. While you were delivering about ICC, Yes. you just mentioned under the conciliation proceedings, some settlement can be arrived. What kind of settlement is, I don't understand, ma'am. See, settlement, actually really what it means here is कि
यदि इंक्वायरी तक हमें नहीं जाना है आगे, राइट? सो आईसीसी के Yes. पास मैंने कंप्लेंट डाल दी, राइट? एंड देन यू नो I feel that okay, I don't want to go into that whole inquiry thing and stuff like that. So what I can do really is I can approach the ICC and I can tell them, request them, look, I want to access the conciliation proceeding. So what the ICC will be expected to do is call the respondent, जिसके against complaint की गई, call the complainant, talk to them face to face, and you know, maybe just by way of an example I'm telling you, maybe give a warning to the respondent and say कि इस प्रकार का यदि एक भी complaint इसके आगे आपके against आता है, we will be compelled to take an action. The woman or the girl, whoever it is, will be asked whether okay, does this satisfy you and you really want to close down on the whole proceeding. So then that kind of a settlement can be arrived at necessarily through the intervention of the ICC. So what the law is actually trying to tell you is that you know, you cannot go into monetary settlements here. So settlement is by way of not going ahead further with that matter, right? और इसमें actually एक चीज जो बहुत important थी, I don't know how I missed it. One thing that the law does say is कि यदि इंक्वायरी के पश्चात आईसीसी को ये लगता है कि भाई ये डेलिबरेटली फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट उस महिला ने डाली थी, राइट? If the ICC comes at this conclusion, then that is treated to be a misconduct against that mahila also. And you know, whether mahila or man, and because under the 2015 regulation it can be either the man or the woman, but that will be also treated as a misconduct. But you know, the trouble, little bit of trouble here is कि केवल इंक्वायरी के पश्चात यदि ये फाइंडिंग पे आती है आईसीसी की भाई नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ था, this finding is not enough to prove that my complaint was malicious. Okay. Additionally, malice has to be proved on my part. And that is the bigger difficulty, because malice is all about intentions. And it's always very difficult to prove intentions before a court or before anybody. So that is one trouble with it. So that is something I missed talking about. I don't know how I missed it, but I'm glad I could cover it now. So I don't know, have I answered your question? Engaging lecture, ma'am. Sorry? It was really an engaging lecture. Thank you so much. You didn't even allow us even for a second to go astray from the contents. Thank you so much. This I'm so always glad to happens. hear it. So I was listening to this lecture. I was looking at your face. Just as I was watching an interesting movie, Oh my God. suspense thriller type of movie. It was really engaging, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. And most of the part was without PPT and it was just a one way, Yes, but yes. it was amazing. लेक्चर चांगलं होतं मॅडम. Yes, खूप नॉलेज मिळालं त्याच्यातून. it's a Sorry, real मला ऐकू नाही आलं. Who's speaking? Sunita madam. Thank you so much, Dr. Dini Menon. Thank you. Oh, thank you, Menon. Wonderful patient. It was really wonderful. Thank you so much, so much. I'm so happy to hear it. Very honored to hear this. चलिए कुछ questions है और अच्छा है और questions? Okay. fruitful. No, these are some appreciating messages you interpret. Yes. No question, ma'am. In chat box also. Okay. So thank you so much, madam, once again for a very informative and eye-opening session. So on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to you, ma'am, for giving your valuable time and engaging the session for the participants. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. Yes. You were the audience too. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, all of you. You can proceed for your lunch break. Our next session will start at 1:30. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, so madam. much. Thank you. Yes, ma'am. Okay, ma'am.